أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ یا تو حلال ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، کتنی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تھوڑی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ حرام چند ہیں، اس کی مثال تو میں نے دی تھی۔ جنت کی ہر چیز کھاؤ، صرف ایک چیز مت کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے۔ حلال زیادہ ہے، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال۔ کتنے پرندے ہیں اور کتنے جانور ہیں، سب حلال۔ اللہ کے رسول نے بتایا جن جانوروں کے کونچلی کے دانت ہوتے، نوکیلے دانت، 4 دانت رہتے، وہ نہیں کھانا۔ کتے کو ہے، بلی کو ہے، اور اسی طرح لومڑی کو ہے، شیر کو، باغ کو، چیتے کو ہے۔ اس کو بولتے ہیں کونچلی کے دانت، نوکیلے دانت 4 رہتے ہو، وہ نہیں کھانا بولے اللہ کے رسول۔ باقی سب کھاؤ۔ اچھا، اسی طرح پرندوں کے متعلق اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا پاؤں سے شکار کرتے نا، وہ نہیں کھانا۔ چیل ہے، کوا ہے، باقی منہ سے جو کھاتے وہ کھاؤ، بہت کم حرام۔ باقی اللہ نے کتنا رکھا ہمارے لیے حلال، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ پینے کی چیزوں میں ہر چیز پیو جی، البتہ جس سے نشہ آتا ہے وہ نہیں پینا۔ اور اسی طرح وہ چیز تمہارے جان کو خطرہ ہے، وہ چیز نہیں پینا۔ پہلے بہت بولتے تھے، ہمارے بچپن میں یہ بیڑی سگریٹ پینے والے سفید کپڑا لیتے، وہ سگریٹ پی کے اس میں پھونکتے، اتنی دور پیلا ہو جاتا، کہتے دیکھو یہ ایک پھونک میں اتنا اثر ہے، اب ایک سگریٹ پہ تو کتنا رہے گا جی، ایسا۔ تو کہا جو نشہ آور چیز ہے وہ تمہارے لیے حرام، شراب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، گانجا ہے، اور اسی طرح وہ گانجا پہ خسخسا بولتے نا، خشخش، پکا کر کھاؤ کوئی بات نہیں، اس کا دودھ اگر نچوڑ کے پیتے ہیں خشخش کا، اس سے نشہ آتا، کا نہیں پینا، نہیں کھانا۔ ہر چیز کھاؤ، اور جس کے پینے سے تم کو نقصان ہے، گانجا ہے، فلاں ہے، یہ سب تمہارے واسطے حرام، اور ہر چیز حلال ہمارے واسطے۔ اب یہ جو انسان چیز کھاتا یا کماتا وہ 2 طرح کا ہے۔ کھانا خود حرام ہے، وہ نہیں کھانا، اسی کے اندر آتا فاتحے کا کھانا، نظر کا کھانا، جو کسی درگاہ وغیرہ کا نظر مانتے نا، وہ کھانا، 40ویں کا کھانا، وہ نہیں کھانا۔ وہ الا لغیر اللہ کے اندر وہ بھی آ جاتا۔ جانور ذبح کریں دوسروں کے نام پر، یا کھانا پکا کے دوسروں کے نام پر کھلائیں، ان کی نظر اولیاء کے لیے۔ باقی غریب لوگوں کے کہ گھر میں کوئی مر گیا، بغیر دن کی تعین کے کھانا پکا کے کھلائے فقیروں کو جائز ہے، وہ ان کے ثواب کے واسطے پکاتے، وہ کھلاتے کبھی مسکینوں کو، جیسے کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو غریب کو کھانا کھلائے گا، وہ جائز ہے۔ لیکن نظر کا کھانا، ان کے واسطے ان کے نام سے یہ کھانا پکاتے ہیں،
नहीं खाना चाहिए वैसा खाना। तो इस तरह खाने की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। खुद या तो गंदा है, गलीज़ है, जैसे कि बुरे जानवरों का गोश्त बताया हमें, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं हलाल हैं लेकिन उसके खाने का तरीक़ा गलत है। उसकी मिसाल देंगे, जैसे एक आदमी को टीचर रखे, भाई स्कूल में पढ़ाना, 8 घंटे पढ़ाओ, तुमको जो तनख्वाह 20,000 रुपये। अब ये आदमी 6 घंटा पढ़ाता, 2 घंटा ऐसे ही जो बेकार गुजारता, बच्चों को धोखा देता। 6 घंटे की कमाई हलाल, अब ये 2 घंटे की कमाई हराम। गलीज चीज़ खाए तो ये हराम नहीं, अच्छी चीज़ खाओ लेकिन गलत तरीक़े से खाते तो ये भी तुम्हारे वास्ते हराम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। बहुत सारे लोग आईटी वगैरह में भी काम करते ना, उनको क्या करती कंपनी, फ़ोन देती, तुम इस्तेमाल करो कंपनी के काम से। अब ये आदमी कंपनी के काम से भी इस्तेमाल करता, घर के काम से भी इस्तेमाल करता, वो जायज़ नहीं, वो जायज़ नहीं। कंपनी के काम से इस्तेमाल करो। मसलन कंपनी आपको कार दी, सब ये कार तुम्हारे वास्ते है, कंपनी को आने के वास्ते, जाने के वास्ते, तुम इस्तेमाल करो। अब ये आदमी कंपनी के अलावा घर के लोगों को भी इस्तेमाल करता, जायज़ नहीं। इजाज़त ले तो जायज़ है कंपनी से, मैं अपना पेट्रोल डाल लेता हूँ और मैं करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए, उनको भी कार दी थी गवर्नमेंट, लेकिन बराबर हिसाब करते थे वो, पेट्रोल कितना चुप लगेगा, क्या करेगा। आधा लीटर पेट्रोल हुकूमत को डाल कर देंगे, उन्होंने पुलिस कहीं भी जा सकते, लेकिन हम लोगों को कभी कार वार दिए, कहीं दिए, उसका हिसाब नहीं, उसका अलग हिसाब करते। कहते हलाल हराम में तमीज़ करना चाहिए ना। उसी तरह आपको कोई भी चीज़ कंपनी दी, कुछ भी दी, उसके लिए इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अपने काम के वास्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंपनी से इजाज़त लेकर कर सकते जी, कंपनी इजाज़त दी, परवाह नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, ऐसा रहता है। तो आदमी जो खाता पीता है, या तो वो चीज़ खुद हराम है, नहीं तो इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा गलत है। तो दोनों सूरतों में हराम कमाई बन जाती, उसे बरकत नहीं रहती है। अब जो खाते हम लोग या पहनते या ओढ़ते, सब हराम में क्या कहता उसमें, ये कहता जिसको कहते हैं सूद, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह। परसों भी मैंने कहा, इतना बड़ा गुनाह शरीयत के अंदर शिर्क के बाद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हैं और कुरान मजीद के अंदर आयतें भी हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयतें सूद के ताल्लुक़ से हैं। उसी तरह सूरह रोम के अंदर भी आयत है। सूरह बकरा के अंदर जो आयतें हैं, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग सूद खाते, मैं बोला खाते, बोले तो खाते ही नहीं, खाते, पहनते, ओढ़ते, घर बनाते, बच्चियों की शादी करते, ऐसा सब करते ना। कहा कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग के सूद खाते, इस्तेमाल करते, बोलो ना, ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। क़ियामत के दिन जब अल्लाह काफिरों से और मुसलमानों से कहेगा उठो कब्र से, सब उठेंगे, मगर ये जो सूद जो खाया वो गया जैसे नशा है, उसको झूमता रहेगा, इधर कदम गिरेगा, उधर कदम गिरेगा, पागल हो गया, शैतान पकड़ लिया उसको, वैसा उठेगा। ये सज़ा होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। दालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा दालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिथलु रिबा। अरब के लोगों से अल्लाह के रसूल जब बोले सूद हराम है,
तो अरब के लोग बोले, अरे व्यापार भी, वो भी एक व्यापारिश ना, व्यापार हलाल वो भी हलाल। क्या बोलते हैं, इन्नमल बैउ मिथल रिबा, व्यापार करे जैसा सूद भी कारोबार है, क्यों हराम वो। अल्लाह ऐसा बोलते थे वो लोग। सूद इस्लाम में शुरू में अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। मक्के के 13 साल जी सूद लेते देते थे सब। मदीने को आकर भी तकरीबन समझिए 9 साल सूद लेते थे देते थे। सबसे बड़े सूद देने लेने वाले हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास। बहुत बड़ा बैंक उनका, सूद का, उनके हिसाब से बैंक, आज के हिसाब से बैंक नहीं, वो उतने बड़े सूद। अल्लाह ताला ने आखिर में, अल्लाह के रसूल जब हज को गए तब अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया सूद को। ये आयत भी नाजिल हुई, हराम है सूद। और फरमाया अल्लाह के रसूल, सबसे पहला सूद जो मैं आज हराम करार देता हूँ, मेरे चचा अब्बास का सूद। अब्बास चचा, 1 पैसा आइंदा से सूद का लेना देना नहीं, तुम्हारा कारोबार ख़त्म आज से। जिनको कर्ज दिए वो कर्ज का पैसा चाहे तो ले लो, चाहे तो वापस कर दो, छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। पहले अल्लाह के रसूल ने अपने ख़ानदान से शुरू किया, हराम है ये। तो देखो अल्लाह फरमाता है, यमहक़ुल्लाहु रिबा विर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटा कर रहेगा। कितना भी फ़ायदा हो जाए जी, आखिर में ख़त्म हो जाता, आखिर में नुकसान, पूरा घर बार सब चले जाता। कितने लोग ऐसे थे जी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो बड़ी मेट मोहल्ला है, क्या शान थी एक ज़माने में उसकी। कितने बड़े मालदार रहते थे, कितना कमाते थे, 1 पैसा सूद का नहीं। बैंक वाले उनके पीछे पड़े पड़े पड़े, आखिर में वो लोग भी बैंक से सूद ले लिए। क्या होता, 1 करोड़ का आर्डर आता फॉरेन से चमड़े के वास्ते। अब इनके पास 30 लाख ही, 40 लाख ही। वो कंपनी को बोलते मेरे पास 40 लाख की सकत है, नहीं उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए हमको व्यापार। 1 करोड़ का देते क्या, दो। बैंक वाले आते, बोले हम 40 लाख दे देते, 50 लाख देते, आप कीजिए इतना बड़ा व्यापार, मत छोड़िए इसको, बहुत फ़ायदा है। बैंक में जाके गिरे। क्या हुआ जी, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं, ख़त्म, पूरा व्यापार मुसलमानों के हाथ से चला गया। वरना इंडिया के कितने लोग मदरसे से बड़ी मेट को आ गए तो चंदा हो गया तो चले जाते थे, मद्रास में घूमते नहीं, एक एक मंडी में घुसते निकलते, वो देकर रख डालते वहाँ उनके अकाउंटेंट के पास। कौन भी आए तो उनको 50 रुपया दे डालो, 50 रुपये पहले बहुत ज़्यादा, 50 रुपया दे दिए, रसीद दे दिए, चले गए, खूब कमाते थे। आज क्या हाल हुआ, अल्लाह ने कहा सूद को मिटा कर रहेंगे। हमारे एक आदमी, उनका भी ऐसे ही जर्मनी को माल देते थे, बहुत मशहूर जी, उनका बहुत मशहूर था। आखिर में बैंक से वो भी लिए, चलते चलते सब ख़त्म हो गया, उनका घर भी आ गया। बैंक ने उनके घर को आर्डर दे दिया कि साहब इनका घर ये सीज कर लेना है। कितनी परेशानी हुई जी, उन्हों भी बीमार, फलां, व्यापार भी ख़त्म हो गया, सुकून भी ख़त्म हो गया, आखिर में वो घर भी जो आके मुसीबत में फंस गया। वो कहिए कि साहब उस ज़माने में, बहुत पहले की बात है, चिदम्बरम जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। कुछ लोग बड़े लोग गए, बड़ी मेट के जाके उनसे मिले करे, कहे बैंक को जितना पैसा देना है वो सब दे डालते, सूद का माफ़ कर डालो। खैर हिसाब साफ करके उसने बहुत कम किया, वो दिए, ये नहीं दिए, उनके दोस्त अहबाब दिए। वो हालत हो गई जी उनकी, सूद में जो भी लेंगे सब